Hello, students. Welcome in social science class. Our today's topic is youth in Nazi Germany. जर्मनी का जो नाजिज़्म का पीरियड था, हिटलर का पीरियड था, उस दौरान के यूथ की बात होनी है आज के टॉपिक में। चलिए देखते हैं क्या है। Hitler was fanatically interested in youth of the country. He felt that strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required control over childhood inside and outside school. हिटलर जो था फाइनेटिकली वो मुल्क के जो यूथ थे उसमें इंटरेस्टेड था और उसकी सोच के मुताबिक एक मज़बूत नाज़ी सोसाइटी को कायम करने के लिए बच्चों को नाज़ी आइडियोलॉजी जो है वो स्कूलों में पढ़ानी बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस काम के लिए बच्चों के ऊपर स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कंट्रोल की ज़रूरत थी। What happened in schools under Nazism? All schools were cleansed and purified. This meant the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped gypsies, were thrown out of the schools. And finally, in 1940s, they were taken to the gas chambers. तो नाज़िज़्म के दौरान में स्कूलों के साथ क्या होता था? स्कूलों को क्लीन करके प्योरीफाई किया गया। किस तरीके से प्योरीफाई किया गया कि स्कूलों में जो टीचर यहूदी होते थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल, जिन पे भरोसा ना किया जा सके, तो ऐसे टीचर्स को डिसमिस कर दिया जाता था, उनको सर्विस से हटा दिया जाता था। यहाँ पे भी शक हो कि ये बंदा रिलायबल नहीं है, ये बंदा शक अमेज बंदा है, या जहाँ पे ये शक हो कि ये बंदा जीव है, यहूदी है, तो उस सूरत में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। Children were first segregated. Germans and Jews were not, and Jews could not sit together or play together. तो फिर दूसरी बात ये थी कि बच्चे जो थे उनको सेग्रीगेट किया गया था, उनकी कैटेगरी बनाई गई थी। जर्मन बच्चे जो थे वही वहाँ पे थे और जो यहूदी बच्चे थे या जो हैंडीकैप्ड बच्चे थे जिप्सीज, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। और फिर क्या होता है, 1940 में इन सारे बच्चों को गैस चैम्बर्स में ले लिया जाता है। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. School textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized even through math classes. Children were taught to be loyal and massive, hate Jews and worship Hitler. Even the function of reports was to measure a spirit of violence and aggregation among children.
Hitler believed that boxing could make children iron hearted, strong, and masculine. तो अच्छे वाले जर्मन चिल्ड्रन, अब जो अच्छे वाले जर्मन चिल्ड्रन बच गए थे उनके पास, उनको नाजी तर्ज तरीक़ा पे स्कूलिंग कराई जाती थी और नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से लिखा गया, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नाजी जो आइडियाज़ हैं रेस के मुतालिक, नस्ल परस्ती के मुतालिक, उनको परवान चढ़ाया जा सके और जिव्स के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसको करिकुलम में लाया गया। इवन मैथ क्लासेस में भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया और बच्चों को बताया जाता था कि वो उनको सबमिसिव रहना है, उनको जीव से हिट करनी है और हिटलर की इबादत करनी है, हिटलर के को फॉलो करना और इस तरीके से करना है कि सबमिसिव होके। Even the function of sports was to match the spirit of violence and aggression children. तो स्पोर्ट्स की जो क्लासेस होती हैं उनमें भी बच्चों को एग्रेशन और हेट का जो है वो सिखाया जाता था। हिटलर बिलीव्ड दैट, हिटलर को ये भी अपनी जगह था कि जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग से बच्चों के अंदर आयरन हार्टेड बनाया जा सकता है उनको और मजबूत बनाया जा सकता है उनको। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10 years olds had to enter Jungwalk. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learn to worship war, glorify aggression and violence, and condemn democracy and hate communist gypsies and other those categorized as undesirable. After a period of rigorous ideology and physical training, they joined the labor services, usually at the age of 18. Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organizations. The Youth League of Nazi was founded in 1922. 4 years later, it was renamed Hitler Youth to unify the youth movement under Nazi control. All the youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबल बताया गया था कि जर्मन्स को कैसे एजुकेट करना है। Ten years olds had to enter जंगवॉक। 10 साल की उम्र के बच्चे को जंगवॉक में लिया जाता था। 14 साल की उम्र में सारे जितने भी लड़के होते थे उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती थी। हिटलर यूथ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया था और जहाँ पे उनको सिखाया जाता था वॉरशिप ऑफ वार, जंग को वॉरशिप करना, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस और एग्रेशन को ग्लोरीफाई करना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना और जिप्स को हेट करना, जिप्सीज और जितनी भी बाकी अनडिज़ायरेबल कैटेगरीज इन सब के साथ नफरत करना, ये चीज़ बच्चों को सिखाई जाती थी। और फिर एक मुद्दत के बाद
जिस दौरान आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेनिंग हो जाती बच्चों की, तो उनको लेबर सर्विसेज में लिया जाता था। यूजुअली 18 साल की उम्र में उनको लिया जाता था। और फिर क्या होता था, दे हैड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। उनको कंपलसरी जो मिलिट्री है, मिलिट्री में जाना था, आर्मी में जाना था, और उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन में भी रहना लाजमी था। फिर आगे क्या होता है कि यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड। यूथ लीग बनाई जाती है नाजीज के 1922 में। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। और 4 साल के बाद उस लीग को दोबारा नाम चेंज किया जाता है और हिटलर यूथ रख दिया जाता है, ताकि मूवमेंट को यूनिफाई किया जा सके और सारा कंट्रोल नाजीज के पास आ जाए। और तमाम इस मकसद के लिए तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सिस्टमेटिकली उनको डिज़ाल्व करके बैन कर दिया गया। सो दिस वाज our topic for the day, and this much is suffice for the day. Thank you.